welcome to the bypass route. So, in the previous class, we were talking about Nelson Mandela as he recollects several things while sitting in the place of inauguration. Well, he first of all mentions about the police officers. Previously, they used to arrest him, but now they were saluting him. After that, he also talks about history, how things have overturned over the course of time. You see how Africa has come to a brighter place. Once upon a time, the same African people they had created the very foundation of racism, and which was converted to a law called apartheid. And then this was overturned by the end of 20th century, where now there is a free government. Now Nelson Mandela has been elected as the first black president of the free Africa. All right. Well, and finally he also talks about courage, and he says that courage is not just the absence of fear, but a victory over it. So that's all we have studied in the previous class. And yes, one more thing was there, how Operation gave birth to the greatest personalities ever. Like the height of Operation created the height of characters. Alright, so these are the things he talked about in the previous video. In today's class, we'll see what is going to take place. Alright, so stay tuned. In life, every man has twin obligations. Obligations to his family, to his parents, to his wife and children. And he has an obligation to his people, his community, his country. In a civil and human society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities. मंडेला कहते हैं कि जिंदगी में हर किसी इंसान का दो रेस्पॉन्सिबिलिटीज, टू इन ऑब्लिगेशंस का मतलब होता है दो रेस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं। एक रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स हिज फैमिली, मतलब फैमिली के अंदर एक और फैमिली के बाहर एक। फैमिली के अंदर का मतलब होता है अपने बच्चे, बीवी, पेरेंट्स, इन लोगों का, और दूसरा होता है आउटसाइड द फैमिली, जो है उसको पीपल, कम्युनिटी, कंट्री। तो ये जो दो ऑब्लिगेशंस हर किसी इंसान का होता है, एक सिविल सोसाइटी में ये इजीली लोग कैरी आउट करते हैं। लेकिन But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of these obligations. In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart. A twilight existence of secrecy and rebellion. लेकिन साउथ अफ्रीका में ये सब इजीली पॉसिबल नहीं था। जो इंसान एक इंसान की तरह जीने की कोशिश करेगा, उसको पनिशमेंट दिया जाता था और उसको आइसोलेट मतलब अलग कर दिया जाता था। और अगर कोई इंसान अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहेगा तो उसको उसके फैमिली से रिप कर दिया जाएगा। जैसे कि आप लोग बॉलीवुड में, मूवीज में देखे होंगे कि कोई एक पुलिस ऑफिसर कोई अच्छा काम करता है तो क्या करते हैं, सडनली उसको ऐसा कुछ करते हैं, उसका वाइफ को किडनैप कर लेते हैं, उसका बच्चे को किडनैप कर लेते हैं, ये सब होता है। तो एग्जैक्टली द सेम केस इन साउथ अफ्रीका। अगर आप कुछ अपने लोगों के लिए करना चाहोगे तो यू विल बी इनएविटेबली रिप्ड फ्रॉम योर फैमिली और आपको अलग कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे बात किया जाता है अ ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रेबेलियन। इसको समझेंगे थोड़ा। ट्वाइलाइट क्या है? ओके, बिफोर द सन राइजेस एंड बिफोर द सन सेट्स, जो थोड़ा डिम लाइट रहता है, उसी टाइम को कहते हैं ट्वाइलाइट। तो इट्स लाइक अ हाफ वे, ना इधर ना उधर, ठीक है, ना दिन होता है ना वो रात होता है, जो मिडिल टाइम होता है उसको बोलते हैं ट्वाइलाइट। तो यहाँ पे ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस मतलब क्या है? अब सीक्रेसी एंड रेबेलियन। तो अगर किसी जगह को आप चुप चुप के जाते हो तो ये आपको अच्छा नहीं लगेगा। अपने लैंड में आप खुद चुप चुप के जा रहे हो, अपने घर में आप खुद चोर हो। और अगर आप ओपनली जाते हो तो यू विल नॉट बी अलाउड, समबडी विल कैच यू एंड हैंड यू ओवर टू द कॉप्स। समझ रहे हो? तो ये गेम हो रहा है, ना इधर ना उधर। So that's the twilight existence of secrecy. Now twilight existence of rebellion कैसे होता है? ना ओपनली आप रिवोल्ट कर सकते हो, ना छिप छिप के कर सकते हो। देखो, आप छिप छिप के कितना रिवोल्ट करोगे गवर्नमेंट के खिलाफ तो ये आपको अच्छा नहीं लगेगा। अगर ओपनली करते हो तो फिर दिल में सुकून आता है, लेकिन आप पकड़े जाओगे तो सीधा रॉबिन आइलैंड में घुस जाओगे। समझ रहे हो ना? द जेल। तो यही बात है ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रेबेलियन। I did not in the beginning choose to place my people above my family. But in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligation as a son, a brother, a father and a husband. हर किसी का दो ऑब्लिगेशंस तो होते ही है, लेकिन पहले मैं कभी भी अपने लोगों को अपने फैमिली के ऊपर नहीं रखा। फैमिली मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी थी।
लेकिन जैसे ही मैं अपने लोगों का मदद करने के लिए थोड़ा सा कोशिश किया, तब भी मुझे पता चलता है कि एक सन, एक ब्रदर, एक हस्बैंड होने का जो भी मेरा राइट्स था वो मुझसे रिप्ड ऑफ कर लिया गया। I was not born with a hunger to be free. I was born free. Free in every way that I could know. Free to run in the fields near my mother's hut. Free to swim in the clear stream that ran through my village. Free to roast mealies under the stars and ride the broad backs of slow-moving bulls. As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. नेल्सन मंडेला कहते हैं कि वो जब पैदा हुए थे किसी बेड़ियां या फिर जंजीरों के साथ पैदा नहीं हुए थे, वो एक फ्री मैन की तरह पैदा हुए थे। तो वो क्या सब याद करते हैं? When he was a child, he knew कि he was free to run in the fields near his mother's hut. अपने माँ का जो कुटिया था, ठीक है, उसी एरिया में जो फील्ड्स थे, उसी एरिया में वो दौड़ते हुए एंजॉय करते थे अपना लाइफ को। बाजू में एक स्ट्रीम था, स्ट्रीम का मतलब वाटर बॉडी लाइक अ रिवर, वहाँ पे तैरते थे आराम से, कोई उनको कुछ रोकने टोकने वाला नहीं था। वो जब भी मन करता था तो स्टार्स के नीचे मतलब रात के समय में मीलीज रोस्ट करके खाते थे। मीलीज का मतलब क्या होता है? भुट्टा होता है, ठीक है, कॉर्न रोस्ट करके खाते थे। और कभी कभार तो मस्त मजे लेते थे। वो जो स्लो मूविंग बुल्स होते हैं ना, सांड के ऊपर बैठकर कभी कभार इधर उधर घूमते थे। तो वो कहते हैं कि जब तक वो अपने पापा को और उनके जो ट्राइब का रूल्स एंड रेगुलेशंस मानते थे, तब तक उनको ना किसी से परेशान होने का डर था, ना मैन से ना गॉड से। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. तो मंडेला कहते हैं कि वो बचपन से ही ये जो फ्रीडम के लिए, रिवोल्ट करने के लिए, इसी चीज़ के लिए पैदा नहीं हुए थे। उनका चाइल्डहुड बहुत ही अच्छा था, ऐसा उनको लगता था। लेकिन जब उनको पता चलता है कि उनका बॉयहुड, उनका जो चाइल्डहुड था, वो एक सिर्फ इल्यूजन था, मतलब एक टेल स्टोरीज, मतलब एक जो चीज़ फेरी टेल स्टोरी है जो कि झूठ था। जब वो थोड़ा बड़े होते हैं तो उनको पता चलता है कि उनका जो फ्रीडम ऑलरेडी उनसे ले गया, मतलब इट्स ऑलरेडी रिप्ड ऑफ, तभी उनको लगता है कि दिस इज टाइम, आई मस्ट हंगर फॉर इट। और अभी ये वक्त आ गया है कि मैं अपना आवाज उठाऊं फ्रीडम के लिए। At first, as a student, I wanted freedom only for myself, the transitory freedoms, मतलब temporary freedoms of being able to stay out at night, read what I pleased, and go where I chose. Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. पहले एक स्टूडेंट के हिसाब से उनको कोई डिफिकल्टीज नहीं थी, उनका फ्रीडम में कोई मतलब दिक्कत नहीं थी। क्या स्टूडेंट्स का होता है कुछ ट्रांजिटरी फ्रीडम्स रहता है, मतलब क्या, जैसे कि जो भी बुक आपको मन करे मतलब पढ़ लेना, कहीं पे जाना, कहीं से आना, रात को कहीं रह जाना, ये सारी चीजें कोई दिक्कत नहीं थी। तो धीरे धीरे जब वो और बड़े हो गए, जोहान्सबर्ग एक होता है साउथ अफ्रीका का बड़ा सा टाउन, तो वहां पे जब जाते हैं तो वहां पे भी उनका जो बेसिक पोटेंशियल वगैरह रहता है, जो कि छोटा मोटा गोल सेटिंग करके इसको अचीव करना या फिर एक मैरिड लाइफ ठीक से लीड करना, ये सारी चीजें थे जो कि एक लॉफुल लाइफ में कभी भी कोई ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करता या फिर हैम्पर नहीं करता। But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. तब मंडेला रियलाइज करते हैं कि ना सिर्फ उनके फ्रीडम को थ्वॉट किया जा रहा था, बल्कि उनके जैसे दिखने वाले सारे डार्क पीपल, सारे कलर्ड पीपल का फ्रीडम इक्वली थ्वॉट किया जाता था, इक्वली कर्टेल किया जाता था। ये सब उन्हें धीरे धीरे पता चलता है, और जब इन्हीं बातों का एहसास होता है उन्हें, तो वो तुरंत अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी ज्वाइन होते हैं। It was this desire for the freedom of my people
to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk. तो ये जो लोगों को मदद करने का जो ज्वालामुखी उनके अंदर से निकलता है, वही चीज उनका लाइफ को एनिमेटेड कर देता है। यही लोगों के लिए ये क्या होते हैं, देखो एक डरा हुआ इंसान जो थे नेल्सन मंडेला, डरा हुआ इंसान को ब्रेव बना देता है। एक इंसान जो कि लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी था, मतलब जो एक वकील था, वही इंसान एक क्रिमिनल बन जाता है, लाइफ लविंग पर्सन होमलेस बन जाता है। और जो लोग जिसको अपने घर इतना प्यारा था, उसी इंसान एक मॉन्क, एक सन्यासी की तरह जाके अलग रॉबिन आइलैंड में अपना जिंदगी गुजार लेता है। जिंदगी का 27 years, 30 years is not a joke. I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man. But I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. Freedom is indivisible. The chains on any one of my people were the chains on all of them. The chains on all of my people were the chains on me. कहते हैं कि वो इस चीज को नहीं मानते कि he is very virtuous or self-sacrificing than the next man. उनके पड़ोसी से ज्यादा self-sacrificing and great he is not. He says that. लेकिन वो ये बात का जिक्र करते हैं कि फ्रीडम जो होता है इट इज इक्वल फॉर एवरीबडी। तो जब उनको एहसास होता है कि वो छोटा मोटा फ्रीडम जो उनको मिलता था, जो कि दूसरों को, उनके साथियों को नहीं मिलता था, जब इस बात का उनको पता चलता है, तब उन्हें ये लगता है कि इट इज नॉट फेयर। फ्रीडम इज इंडिविजिबल। आप ऐसा नहीं कर सकते मुझे थोड़ा फ्रीडम ज्यादा दे दो और उसको थोड़ा कम दे दो, ऐसा नहीं हो सकता। तो उनको लगता है कि फ्रीडम ऑन हिम, chains on him is chains on everybody else, and chains on everybody else is like chains on him. तो उनका, अगर उनका फ्रीडम के ऊपर पाबंदी लगता है तो ऐसा लगता है कि दूसरों के ऊपर लगा हुआ है, और दूसरे के ऊपर अगर कोई पाबंदी लगता है तो उन्हें लगता है कि उनके ऊपर भी पाबंदी लगता है, क्योंकि he feels that freedom is indivisible. I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. I'm not truly free if I'm taking away someone else's freedom, just as surely as I'm not free when my freedom is taken from me. The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. So, यहाँ पे मंडेला क्या कहते हैं कि जो ऑप्रेस करता है दूसरों को, that person also must be liberated. Liberated का मतलब क्या है? Given independence. वो भी बंदी है, ना सिर्फ वो ऑप्रेस करके दूसरों को बंदी बना रहा है, वो खुद एक कैदी है। किस चीज का? हेट्रेड का, नैरो माइंडेडनेस का, प्रेजुडिस का। तो ये जो है खुद गुलाम बन के बैठा है इन सारे नेगेटिव चीजों का, ठीक है? तो वो खुद प्रिजनर है और उसको भी फ्रीडम मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो ऑप्रेस्ड हुआ है वो सिर्फ कैदी है। तो दैट्स व्हाट मंडेला राइटली स्पीक्स कि दे आर रॉब्ड, द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर बोथ आर रॉब्ड ऑफ ह्यूमैनिटी। उन दोनों में ह्यूमैनिटी जो चीज है वो एक्सप्लॉइट की जा चुकी है। All right, so guys, that's all about this Nelson Mandela, a long walk to freedom. Well, it was indeed even a long walk for all of us as well, because we took 3 classes to finish it. All right, guys, so that's all for this class, and I hope you are enjoying it. Well, nothing more to say. Happy learning.